हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग द बैंक पेंशन अपडेशन। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चल रहे हैं दोस्तों रिगार्डिंग द सेक्शन जो 35 है उसमें चेंजेस की दोस्तों अभी टॉकिंग चल रही है दोस्तों। सो वी गोना सी दैट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मिस्टर CN वेणुगोपालन जी उनके अभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लेटर लिखा गया है ग्रीवियंस नंबर आप देख सकते हैं PMO PGD 2022। ये आप PMO की साइट के ऊपर दोस्तों चेक कर सकते हैं। ये हाल ही में लिखा गया 13 को। सो द अबव ग्रीवियंस वाज फॉरवर्डेड टू DFS बाय PMO ऑन 5 September 2022 as it was to be redressed by DFS. The grievance related to the wrongs done by DFS and so the responsibility for its activation rests squarely with the DFS. जो DFS ने अभी प्रॉब्लम करी है क्रिएट, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक करने की है वो भी अभी दोस्तों DFS के साथ ही है। सो बट स्ट्रेंजली DFS फॉरवर्डेड इट, बट उन्होंने अभी इस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया दोस्तों टू IBA on 27 September. So an unregistered organization which cannot do anything for resolution of matter। जैसा कि आपको पता है IBA एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों। So this is a classic demonstration of passing the buck by the DFS. So the pension regulation of banks were given previous sanctions by DFS adopted by boards of banks and notified by the DFS in the Gazette of India। आपको पता ही है on 27 September 1995। So as such, it is obligatory on part of DFS to ensure that banks implement them in letter and spirit. So regulation 35(1) डिक्टेट करता है जो बेसिक पेंशन है एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन जो अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूला दोस्तों दिया हुआ है। द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ऑन 16 अगस्त ऑब्जर्व्ड in its ruling in writ petition number 29890 of 2018 that is MK रविनंदन। जैसा कि आपको पता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दैट पेंशन इज टू बी प्रोडिकली रिवाइज, तो पेंशन को प्रोडिकली रिवाइज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन। सो DFS इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट इट कैन withhold updating of pension in public sector bank only so long as it is not updated in the RBI। So in spite of this, while according sanction for updating pension in RBI letter number जो 5 मार्च 2019 में RBI की पेंशन अपडेट हुई थी, सिमिलरली अपडेटिंग वाज नॉट ग्रांटेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वैसा अपडेट दोस्तों नहीं मिला। सो DFS वाज आल्सो कॉजिंग बैंक्स टू पे पेंशन आउट ऑफ द पेंशन फंड which compromise the deferred wages and property of the employees and can pay pension or family pension only to employees or their families in terms of regulation 5(2) to the retired whole time directors of banks जो कि employees भी नहीं है दोस्तों within the meaning of regulation 2 of pension regulation। So this is nothing but conversion of pension fund held in trust by bank and an act amounting to breach of trust by public servants and by bankers जो अभी cognizable offense अंडर सेक्शन 405 एंड 409 ऑफ इंडियन पैनल कोड IPC के तहत दोस्तों ये एप्लीकेबल है। सो द ग्रीवियंस जो अभी फाइल करी है बाय मी इज रिमेनिंग अनरेस्ट एंड अनरिजॉल्व्ड है बोलो दोस्तों। द IBA इज नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट बट आल्सो पावरलेस एंड हेल्पलेस टू रिजॉल्व द सेम। So I therefore request you to on the responsibility for resolving my grievance at your end and communicate necessary instructions to banks to avoid by regulation 35(1) and to update pension in banks forthwith for logical resolving the genuine grievances दोस्तों। तो I appeal to your good sense to take an unprejudiced view of the issue and do justice to the subject of the pension regulation 1995 without further delay। So it is within your power and justice must be brought together। So needless to say, power is meant for service and for helping and not for hurting। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कैसे CN वेणुगोपालन जी हमारे कितना एफर्ट कर रहे हैं अभी। दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर द
bank pension updation in a legal way. That is the right of every human being. So hope you will redress the grievance forthwith by setting things right at the earliest. तो देख सकते हैं आप दोस्तों, सीएन वेणुगोपालन जी वो बोल रहे हैं अभी हमारा जो पेंशन अपडेशन का मैटर है वो उन्होंने आईबीए को रेफर कर दिया, एंड आईबीए इज नथिंग बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनके पास पावर नहीं है सेक्शन 35(1) को दोस्तों अपडेट करने की, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है भी हमारा जो पेंशन अपडेशन का मैटर है वो आईबीए नहीं, डीएफएस खुद उसके ऊपर काम करे दोस्तों। सो बट स्ट्रेंजली डीएफएस ने वो फॉरवर्ड किया टू इंडियन बैंक एसोसिएशन, वाई, एंड जो कि एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच कैनॉट डू एनीथिंग फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द मैटर। तो ये क्लासिक एग्जांपल है भी कैसे of passing the bucks by the DFS, and you know that pension regulation of banks were given previous sanctions थी वो DFS ने दी थी और वो अडॉप्ट करी थी बोर्ड ऑफ बैंक्स ने, and that was notified by the DFS in the Gazette of India on 27th of September 1995. So it is obligatory on part of the DFS to ensure that the banks implement them in a better way and with the spirit. But how now they are playing the buck game दोस्तों। तो ये सेक्रेटरी को लेटर लिखा उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो होपफुली डियर सेक्रेटरी अभी इसका जो रिजॉल्व करते हैं, लेट्स सी, बट द एफर्ट्स which they are doing is really clappable दोस्तों। and one thing this is the image someone shared with me, that 12th by-part settlement preparations, charter of demands, this is from the inside meeting picture that is being done at Mumbai on 13th of October 2022। सो चार्टर ऑफ डिमांड्स की अभी दोस्तों फाइनलाइजेशन हो चुकी है, तो उसका जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे 12th बाई पार्ट सेटलमेंट का। जैसा कि आपको पता है 11th बाई पार्ट सेटलमेंट की जो अवधि है वो 31 अक्टूबर को 2022 को खत्म हो रही है और 1 नवंबर 2022 से 12th बाई पार्ट सेटलमेंट की दोस्तों तैयारियां शुरू हो रही है। तो उसका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है ये, तो वहां पे चार्टर ऑफ डिमांड्स की जो मीटिंग है वो दोस्तों चल रही है। होपफुली समथिंग बेटर विल बी देयर फॉर पेंशंस टू, हमें यही आशा दोस्तों। सो दिस वाज दी लेटेस्ट अपडेट्स एज ऑन टुडे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना।